if the matrix filled so that if coordinates satisfy the transformation law for covariant tensors, okay, this matrix field is a metric tensor. Satisfy the transformation law for covariant vector with respect to Gij. Okay. Metric tensor means it satisfies properties A to D above. Okay, the previous A to D properties. Okay, in previous lecture, A to D mentioned in previous lecture. Okay, B question is asked for this matrix compute the arc length parameter and the length of the curve is given by this way. x1 is equal to 2t minus 1, x2 is equal to 2t square, x3 is equal to t cube, and t varying from 0 to 1. Okay. We have to compute arc length of this curve. Okay. Solution. Now Gij given this way. This is given x1 square minus 1, 1 0 1 x, okay, x2 0 0 0 64.9. What is G11 here? G11 is x1 square minus 1. G12 is here 1. G13 is 0. G21 is 1. G22 is x3 2. G23 is equal to 0. G31 is equal to 0. G32 is equal to 0. And G33 is equal to 64.9. Okay. You can check here. Gij is actually Gji.
first A property is satisfied. A is, so G is symmetric. That means A is satisfied. Property A is, condition A is satisfied. Okay. Second condition, B condition was what? G should be non-singular. Now we have to verify whether B condition is satisfied or not. So we have to calculate determinant of G. What is determinant of G? What will be determinant? How to calculate its determinant? We can expand along the third row. So after calculating, its determinant will be 64/9, and this will be equal to, you calculate determinant of this matrix, what you will get? You will get x1 का square minus 1. Okay. x1 का square minus 1. Okay. x2 का square minus 1. That this will you get. In question it is given that in question this is not going to equal to 1. If it is not equal to 1, okay, if this is not equal to 1, then determinant will not be 0. Okay, because this part is not equal to 1, that means this is not equal to non-zero. Okay, so this implies G is non-singular. What was the condition C? Condition C was that arc length should be invariant. Okay, arc length should be invariant. In part A it is given that Gij is covariant tensor. Gij is covariant tensor. It is given. Okay, then what is the arc length formula? Arc length formula is what? What was the arc length formula? This is arc length formula is so arc length formula is ds upon dt square, okay, epsilon Gij dxi dt dxij dt. जब ये कोवेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 हो गया और ये दोनों क्या है, ये कोवेरिएंट, ये हो गया कोवेरिएंट, ऑर्डर 2 का कोवेरिएंट, और ये ऑर्डर 1 का कॉन्ट्रावेरिएंट है, और ये भी ऑर्डर 1 का कॉन्ट्रावेरिएंट है. मैंने बोला था कि अगर कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट को कट करता है, इसका ऑर्डर कितना हुआ? 2 हुआ, इसका ऑर्डर 1 है, तो 2 में से माइनस हो जाएगा, यानी 0. यानी अगर किसी टेंसर का ऑर्डर 0 हो तो इसका मतलब क्या है? वो एक तरह का कांस्टेंट चीज़ बनाता है. तो इसका मतलब क्या है? जो आर्क लेंथ हुई ना, दैट मीन्स आर्क लेंथ formula is invariant. That means differential form that means this is invariant in with respect to any coordinate system. It means differential form of arc length is invariant. Okay, so all the conditions are, and next we have verified condition. Here if G is symmetric na, B is satisfied, condition B is satisfied. This was condition C is satisfied also.
B, C satisfied, and this was the condition D. Condition D is satisfied. So B, C, D condition satisfied. Condition A we have not checked. First of all we should check condition A. Okay. So I am checking condition here. So here these are constant. Either the things are Gij is constant or some polynomials. Polynomials functions are differentiable. Polynomial functions, square, all these things are differentiable. So this implies G is of differentiability class C2 because Gij are polynomials. पॉलिनोमल्स क्या होता है, जो कांस्टेंट होते हैं उनको भी पॉलिनोमल्स बोलते हैं, जो x1 x2 इनकी पावर्स होता है उनको भी पॉलिनोमल्स बोलते हैं. पॉलिनोमल्स हमेशा डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 2 के होते हैं. सो ऑल द कंडीशंस ऑफ so all the conditions of being a metric tensor are satisfied. Therefore Gij is a metric tensor. ओके मैट्रिक. अब बी पार्ट करते हैं, आर्क लेंथ निकालनी है हमें. ठीक है ना. आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या था, हमने ये फाइंड आउट कर था ds/dt. ठीक है. Gij dxi dt dxj dt. देखो इसको ना इस तरह से लिखा जा सकता है, dxi dt का ट्रांसपोज कर दो, क्योंकि एक्चुअली ये मैट्रिक्स है. जब ये समेशन लिखवा है आइंस्टीन की लैंग्वेज में तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है. ठीक है. मैट्रिक्स फॉर्म में इसको ऐसे लिखा गया. यहाँ तो समेशन है प्रोडक्ट होके, मैट्रिक्स फॉर्म में मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा. ठीक है. ये वाला क्या है, ये रो वेक्टर है, ये कॉलम वेक्टर है और ये मैट्रिक्स है. सो देखो dxi dt इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मैं ले रहा हूँ कॉलम वेक्टर dx1 dt dx2 dt dx3 dt. ठीक है. x1 क्या था, d/dt. x1 क्या है मेरा 2t - 1 d/dt. x2 क्या है यहाँ पे 2t² d/dt. और x3 क्या है t³. अब इसको सोल्व कर लो, क्या आएगा ये. व्हाट इज दिस, दिस इज 2, दिस इज 4t एंड दिस इज 3t². ठीक है. अब dxi dt कॉलम मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, 2 4t 3t². अब ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले में रख दो. नाउ एप्सिलॉन ds/dt², ये सारी वैल्यू यहाँ पे रखो, 2 4t 3t². ठीक है. मैट्रिक्स क्या है मेरा वो लिखना है मुझे यहाँ पे, और यहाँ पे 2 4t 3t². मैट्रिक्स की पहली एंट्री क्या थी, x1² - 1, लेकिन x1 की वैल्यू क्या है 2t - 1, वो वैल्यू भी रख देंगे साथ के साथ यहाँ पे
101, यहाँ था x2 स्क्वायर, x2 की वैल्यू है 2t स्क्वायर, तो ये वैल्यू रखने के बाद ये कर दिया, सब कुछ t में चेंज कर देंगे, कर्व x1 x2 उनके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। जब हम इसको सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद तो पता क्या आएगा, 64t टू द पावर 6 प्लस 64t की पावर 4 प्लस 16t स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, 8t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर, इसकी वैल्यू है। ओके, ठीक है। एप्सिलॉन डी एस अपॉन डी टी स्क्वायर 8t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर। देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये वाली चीज़ राइट हैंड साइड क्या है, नॉन निगेटिव है, तो यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, ये भी नॉन निगेटिव, तो एप्सिलॉन को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा, अदरवाइज एक साइड निगेटिव हो जाएगी एक पॉजिटिव। सो वी हैव एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 बिकॉज डी एस अपॉन डी टी स्क्वायर इज नॉन निगेटिव एंड 8t क्यूब 4t स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव 4। अगर मैं t की वैल्यू स्ट्रिक्टली लूँ तब तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो पॉजिटिव है तो एक पार्ट और ये नॉन नेगेटिव है तो एप्सिलॉन को 1 होना पड़ेगा। इस केस में क्या होना पड़ेगा, इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। डैट मीन्स वॉट, मुझे क्या मिल गया, डी एस अपॉन डी टी का स्क्वायर क्या मिला मुझे, 8t क्यूब 4t स्क्वायर मिल गया। अब मैं स्क्वायर रूट ले लूँ बोथ साइड, ओके, स्क्वायर रूट आई एम टेकिंग बोथ साइड, देन व्हाट आई विल गेट 8t क्यूब प्लस 4t, ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूंगा मैं विद रेस्पेक्ट टू t, ओके, 0 to t, so taking integration what I will get, 0 to t 8t cube 4t dt, okay, then what is this, ठीक है। देखो हम t के रेस्पेक्ट में लिमिट ले रहे हैं, इनसाइड वेरिएबल को चेंज भी कर सकते हैं हम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिमिट t में है तो इस वेरिएबल को चेंज भी करना पड़ेगा हमें, क्योंकि कन्फ्यूजन हो रही है फिर, ठीक है, क्योंकि लिमिट भी t है, उसके अंदर का वेरिएबल t है, दोनों सेम नहीं होने चाहिए ना। तो अब इसका करो, तो इसको सोल्व करके आएगा क्या, 2u की पावर 4 प्लस 2u स्क्वायर 0 to 2, what you will get, 2t to the power 4 प्लस 2t स्क्वायर। सो आर्क लेंथ क्या होगी, फॉर विच आर्क लेंथ ऑफ कर्व क्या आ जाएगी, तो ये क्या आ गया, आर्क लेंथ का पैरामीटर आ गया जो t के ऊपर डिपेंड है, आर्क लेंथ पैरामीटर, दिस इज आर्क लेंथ पैरामीटर, दिस इज आर्क लेंथ पैरामीटर, ओके। और लेंथ ऑफ कर्व क्या होती है, मैंने बोला था लेंथ ऑफ कर्व क्या होगी, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कर्व क्या हो जाएगी, दिस इज S इवेल्युएटेड एट फाइनल पॉइंट B, फाइनल पॉइंट क्या है मेरा 1 है, क्योंकि t वेरिंग फ्रॉम 0 to 1, सो ये क्या आ जाएगा, so this is 2 plus 2 is equal to 4, this is the arc length of curve, okay, arc length is
4. Okay. So today's lecture up to this. Thank you very much.